قرآن پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کا جواب ہم تاریخی طور پر دینے والے ہیں. زیادہ کافی کچھ سیکھنے کو ملنے لگا ہے. تگڑے ہو کے بیٹھ جائیں, ٹک کے بیٹھ جائیں. کیوں نہ اعتراض کا جواب دینے سے پہلے اعتراض آپ کو سنوا دیا جائے. پاسٹر مٹیو اور یسو کی کتی قرآن کے اوپر بیٹھ کر اعتراض کر رہے تھے. آج مناسب ہے کہ اس اعتراض کا جواب دے دیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس جواب سے ہمارے کئی نوجوانوں کو قرآن پر اٹھنے والے کرسچن مشنریز کے ان رٹے رٹائے اعتراضات کا بھی جواب ہو جائے گا. سنیں جی. پہلے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لو. اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے جس پر اعتراض ہو رہا ہے. کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لو. اصل میں جو ٹرینٹی پیش کی جاتی ہے قرآن کی طرف سے, مسیحی جو عقیدہ ہے خدا کے متعلق, وہ عقیدہ جو ہے اس کا مسیحیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے 1% بھی. کیونکہ جو عقیدہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی خدا کو 3 مانتے ہیں, اور وہ کس طرح سے مانتے ہیں؟ عیسیٰ, اللہ اور مریم. حالانکہ ہم یہ کہتے ہی نہیں. اگر تمہارا, کیونکہ ہم تو یہ نہیں کہتے, نہ قرآن یہ کہتا ہے. یہ میں کہہ چکا ہوں کہ چیلنج ہے کہ قرآن میں جہاں ٹرینٹی کو کرٹیسائز کیا گیا ہے اور کفر کہا گیا ہے, وہاں ٹرینٹی کے 3 پرسنز جو آپ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں, ان میں حضرت مریم علیہ السلام کو یا بائبل کے مطابق سینٹ میری کو رکھا ہی نہیں گیا. نہ قرآن نے رکھا ہے, نہ کوئی بھی پڑھا لکھا مسلمان یہ کلیم کرتا ہے. تو ہمارے کسی ایسے مسلمان بھائی کے ساتھ جو قرآن کے بارے میں نالج نہیں رکھتا ہو, اس کی چیز کو عمومی مسلمان پر تھوپ دینا, یہ تم لوگوں کا بلنڈر ہے. پوائنٹ نمبر 1 یہ کلیئر ہو جانا چاہیے. دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ قرآن نے یہ کلیم کیا ہے, تو یہ عقیدہ مسیحیوں کا رہا ہوا ہے, یہ ثابت کرنا ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ مانتے ہی نہیں. اس لیے میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ قرآن شریف مسیحی عقیدہ تثلیث فی توحید کی تردید نہیں کرتا, اس لیے بلکہ وہ قرآن کا الزام ہے, اور مسلمان بھی وہ الزام لگاتے ہیں, اور پھر وہ پہلے الزام لگاتے ہیں اور پھر اس الزام کے اوپر تنقید کرتے ہیں. جو ہم مانتے ہیں اس کے اوپر تنقید کریں, اپنا اسی پہ کرنے لگا ہوں. خود کا لگایا گیا جو الزام ہے اس کے اوپر تنقید نہ کریں آپ. بے شک بے شک. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا جو ہوں سر, آیتیں آپ نے پیش کی ہیں آیتوں سے پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ محض ان کا الزام ہے. اس کا مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ تثلیث ہے کیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے تثلیث کیا ہے. ان کو پتہ ہے, تو ان کو ہم چیلنج کر چکے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو پتا ہے تو میدان میں نکلو, ہمیں بتا دو کہ تم قرآن پہ اعتراض کرتے ہو اور بائبل نے نہیں بتایا, بائبل نے ذکر تک نہیں کیا تثلیث کا, ذکر تک. پتہ ہی نہیں, ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہے. بے شک. سر جی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا ارلی کرسچینٹی کے اندر فار ایگزامپل 5th سینچری 3rd, یہ نوٹ کر لو دوستوں, نوٹ کر لو یہ چیز. کیا ارلی کرسچینٹی کے اندر فار ایگزامپل 5th سینچری 3rd سینچری 4th سینچری محمد سے پہلے کا, تو یار کیا ایسے کرسچن تھے جو مریم کو بھی ٹرینٹی کا پارٹ سمجھتے ہوں؟ اگر بائبل تک رکھتا تو جان بچ جاتی, اپنا بیڑا کر خود کروا لیا. اب ہم بتائیں گے ارلی کرسچنز کیا مانتے تھے کیا نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ دوسروں کو کہتا تھا نا لوز کینن ہے, لوز کینن. یہ الو کا پٹا خود لوز کینن ہے, اے یسوع کی کتی. جیسے کتا اپنے مالک کو دیکھ کے شوخا نہیں ہوتا دم اٹھا کے, پاسٹر مٹھیو کی لشکاریں مارتی ہوئی ٹنڈ کو دیکھ کر اس کی دم بھی اوپر کو چلی گئی, مگر پچھواڑا میری طرف تھا تو لہذا میں نے تیر ٹھوک دیا. اب بھگت کیا ہے, مسلمانوں نے اتنے آرٹیکلز لکھے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ایک ویکیپیڈیا کا آرٹیکل بھی بن گیا ہے. کہہ رہا ہے یہ مسلمانوں نے سازش کی ہے, ہماری طرف الزام لگایا ہے کہ ہم پتہ نہیں شاید سینٹ میری کی پوجا کرتے تھے, ہم تو کوئی نہیں کرتے, یہ الزام لگایا ہمارے اوپر. تو ابھی ہم دکھائیں گے کہ یہ مسلمانوں نے الزام لگایا ہے, یہ کہاں سے بات آئی ہے. اور میٹا بھی بتاتا ہے اب اس کے بارے میں کہ کلوریڈینزم جو ہے نا ایک سیکٹ تھا. اچھا جی, اب لوگ کیا کرتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں, انہوں نے یہ دیکھ لینا کہ یار ایک سیکٹ تھا, لیکن ایک سینٹنس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز نہیں پڑھتے, اللیجڈ. اللیجڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یسوع کی کتی پورے کے پورے اصول کو اس طرف لے کر آنے لگی ہے کہ یہ اللیجڈلی الزام لگایا جا رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے, ہم تو کرتے ہی نہیں تھے, یہ الزام تھا. تو یہ اللیجڈلی کہا گیا ہے.
ठीक है ना। अब इसको हम प्रूव कर देंगे allegedly कहा गया कि नहीं, सुनते जाओ बस। मैं स्ट्रेस उन पॉइंट्स के ऊपर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे जब मैं रेफरेंसेस के साथ हर चीज को रखूंगा। alleged का मतलब क्या होता है? alleged कहते हैं जिसका कोई एविडेंस ना हो, कोई प्रूव ना हो, सिर्फ एक क्लेम ही हो, फर्जी बात होती है। फर्जी बात है। अब नाउ बिकॉज हमारे प्यारे नबी को नहीं पता था क्रिश्चियनिटी का क्या होता है अकीदा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला नहीं पता था कि ईसाइयों के अकीदे क्या हैं, मसीहियों के। तो क्या हुआ, वो जब उन्होंने देखा कि यार मदर मैरी के मुजस्समा पड़ा हुआ है, मरियम का मुजस्समा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने समझा यार ये लोग तो मरियम की पूजा करते हैं। ओ अच्छा, यानी मुजस्समा पड़े हुए देखा और कह दिया कि ये मदर मैरी की पूजा करते हैं। करते नहीं थे, मुजस्समा पड़ा हुआ था और उन्होंने कह दिया। तो मुजस्समा जो है वो किस लिए रखा हुआ था, अभी तो दलीलें मैं दूंगा, मगर मैंने इसलिए कहा था ये बैकफायर कर गया है। पादरी पिट रहा है, यकीन करें पादरी का बस नहीं चल रहा कि वो खुद को सलीब के ऊपर चढ़ा ले और 2 दिन तक उतरे नहीं, खुद ही फंस गया है बोल के। मुजस्समा जो देखा तो समझा उसकी पूजा। तो मुजस्समा किस लिए बनता था? रास्ता बताने के लिए कि यहां से दाएं मुड़ जाएं, जैसे मैकडोनल्ड के बाहर पड़ा होता है। और मुजस्समा किस लिए रखा था? गुदगुदी करने के लिए। और हेंस वहां से निकल आई ये पूरी कहानी। तो इट्स अ मेड अप स्टोरी इन द कुरान, जो कि हमारे प्यारे नबी को चूंकि पता नहीं था, तो ये वाला सारा मसला शुरू हो गया। लो जी, अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला इसके इल्जाम के बकौल पता नहीं था, तो कुरान में ये गलती आ गई बकौल इनके, और ये मेड अप स्टोरी आ गई इल्जाम के तौर पर। एलिजिडली मसीही सेंट मैरी की पूजा करते हैं, ये मूर्ति देखी पड़ी हुई थी, उन्होंने समझा इसकी पूजा होती है, लिहाजा उन्होंने कुरान के अंदर ये बात डाल। नाउज बिल्ला, ये कुरान के ऊपर एतराज है? यहां से खत्म हो गया जी एतराज। अब आपने याद रखना है ये एतराज इन दो का नहीं है, ये एतराज क्रिश्चियन मिशनरी का टिपिकली यूज्ड हथकंडा है कुरान में एक गलती और एरर निकालने के लिए। इनकी तरफ से ये एतराज किया जाता है, 2 बड़े एतराज। अब सुन लो जरा, क्रक्स निकलने लगा है और फिर हम जाने लगे हैं हवाला जात की तरफ, ठीक है? तो पहले क्रक्स सुन लो। 2 एतराजात किए जाते हैं यहां। नंबर 1 कि जो ट्रिनिटी है उसमें किसी जगह पर भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को या मैरी, वर्जन मैरी को बाइबल के अकॉर्डिंग किसी तौर पर भी पार्ट नहीं समझा जाता था ट्रिनिटी का। पहला इतराज ये है। तो कुरान ने ये गलती की इनके बकौल कि उनको ट्रिनिटी का पार्ट कहा। उसमें इब्तदाई तौर पर मैं आपको बता चुका हूं कि कुरान में किसी जगह पर भी ट्रिनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र तक नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बिफर्ज महाल ये मान लिया जाए कि कुरान ने ये कहा है कि ट्रिनिटी में ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को शामिल करते हैं, तो इसका प्रूफ भी मैं आपको देने लगा हूं। दूसरा एतराज जो उठता है, पहला हो गया ट्रिनिटी का पार्ट मानना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को। दूसरा एतराज ये करते हैं कि ईसाई मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा पाठ करते ही नहीं थे, ना करते हैं, और चलो करते हैं को निकाल देते हैं, इसने कहा अर्ली क्रिश्चियंस। तो ये 2 एतराज हैं, समझ गए आप? नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं, डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करने लगे हैं इस एतराज को कि क्या मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा के हवाले से जो कुरान ने कहा है, तो क्या मरियम अलैहिस्सलाम की या सेंट मैरी की पूजा चल रही थी? क्या कुरान ने इसमें गलती की है या सही बयान किया है? आए हम देखते हैं इनकी किताब से। ये आपके सामने एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ द डिवोशन टू द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी मदर ऑफ गॉड, न्यूयॉर्क से ये पब्लिश हुई। इसका वॉल्यूम 2 है। यहां आपने एक वर्ड देखा होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये मदर ऑफ गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम की या सेंट मैरी की पूजा के हवाले से जो चीज बेस बनी थी ना, वो ये कॉन्सेप्ट है, मदर ऑफ गॉड। ठीक है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम 2 के ये आर्टिकल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ बातें की गई। इसके हम जाने लगे हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। नाजरेंस जो नासरी थे, याद रखें नासरा एक इलाका था
जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम सुकूनत पजीर हुई थीं, इसीलिए मसीह नासरी भी यसू मसीह का एक लकब है बाइबल के अंदर भी, न्यू टेस्टिमेंट में। अब ये सुने, नाजरियंस हु केम टू प्रे एट द टोम्ब ऑफ द मदर ऑफ जीसस, उन्हें ये लगा कि जब बड़ी तादाद में नासरी यानी कि मसीही भी जब बड़ी तादाद में यसू मसीह की वालिदा की कब्र पर दुआ मांगने आने लगे, तो उनको वायलेंट परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, जो कि यहूदियों के जो कनीसाओं के सिनेगॉग्स के प्रिंस थे उनकी तरफ से। यहां तक के सैकड़ों की तादाद में क्रिश्चियंस जो कि जीसस क्राइस्ट को मानते थे were put to death for having raised an oratory over her tomb, जिन्होंने एक मकबरा बनाने की कोशिश की, एक दरगाह बनाने की कोशिश की सेंट मेरी की कब्र के ऊपर। ये हिस्टोरिक फैक्ट है जिसको एक क्रिश्चियन रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा है। अब आगे आपने पीक चेक करनी है, मैं चलने लगा हूं तो देखना आपने कि कुरान ने गलती की है या कुरान ने हकीकत बयान की है, और ये कुरान की सच्चाई की अलामत है जिसको ये ईसाई छुपा रहे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ कुरान पर इतराज करने के लिए। तो ये पहला सबूत है कि सेंट मैरी की ये लोग पूजा करते थे। पेज नंबर 7 था, पेज नंबर 8 पे आए हैं। ट्रेडिशन सपोर्टेड बाय रिलीजियस मोन्यूमेंट्स asserts that the worship of Mary is of apostolic tradition. लो ओ पे आ जाए। बिब्लिकल टर्म में apostolic tradition का मतलब होता है जो जीसस के अपोस्टल से चीजें चली आ रही होती हैं। पता क्या मतलब है? सनद के साथ लेने के देने। अपोस्टोलिक ट्रेडिशन का मतलब होता है कि यसू मसीह के जो अपोस्टल्स थे उनसे ये चीजें ली गई हैं। उनमें से एक चीज थी सेंट मैरी की पूजा। तो कुरान सच्चा साबित हुआ या कुरान गलत साबित हुआ? सच्चा साबित हुआ। अब समझ आई? कोई कह सकता है कि कौन से अपोस्टल्स थे? याद रखें यहां सेंट पीटर का जिक्र किया गया है जब वो एंटीओक में पहुंचे थे। इसी तरीके से सेंट जॉन का जिक्र किया गया है जो अपोस्टल थे और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत चर्च जो चर्च ऑफ लाइडा है उसको बनाया था, पेश किया था। इसी तरीके से सेंट बरनबास का जिक्र मिलता है कि उन्होंने मैरी के नाम पर डेडिकेटेड टू मैरी एक चर्च खड़ा किया था। तो ये अपोस्टोलिक ट्रेडिशन थी कि सेंट मैरी की पूजा जारी थी। यहां लिखा हुआ है मौसूआतुल खादिम अल क़िब्ती, कॉप्टिक क्रिश्चियंस का ये इंसाइक्लोपीडिया मौसूआ है। इस इंसाइक्लोपीडिया का दूसरा जुज है। याद रखें इस इंसाइक्लोपीडिया के जो 2 जुज हैं उनमें से एक है हमजा के नाम से, क्योंकि ये अरबी में सॉरी अलिफ या हमजा बोलते हैं इसे, ठीक है, हमजा के नाम पर है, और एक है बा। ये वॉल्यूम 2 जो है, आपने अगर इसको डाउनलोड करना है तो आपने हमजा वाले को करना है। ये तवाइफ अरबी जुबान के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं उनको डील करेगा ये इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। और जो बा है ये मसीहियत और यहूदियत में फर्क को एक्सप्लेन करता है। ये आपको साइट नजर आ गई होगी coptictrails.com, यहां से आपको ये ओरिजिनली भी मिल सकता है। अच्छा, इसके पेज नंबर जाएंगे हम। ये इंपॉर्टेंट है कि अब इसको मैं लाइव में कवर कर दूं। पेज नंबर 84 होगा इसका, ठीक है। अहम्मु खिलाफतिना नहनुल ऑर्थोडॉक्स मअल कैथोलिक, हमारे इख्तलाफात ऑर्थोडॉक्स के कैथोलिक्स के साथ क्या क्या हैं। इसमें आपने जाना है 27वें इख्तलाफ के ऊपर कि 27वां डिफरेंस ऑफ बिलीफ क्या है ऑर्थोडॉक्स का कैथोलिक के साथ। अलकनीसतुल कैथोलिकिया व तस्नाउ, और कैथोलिक्स ने लहा तमासीला, मरियम अलैहिस्सलाम या सेंट मैरी की पुतले बना रखे हैं, मूर्तियां बना रखी हैं, फी कनीसतिहिम, अपने चर्चों में, कमा यसल्लून लिल अज़रा मरियम, जैसे वो नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, भक्ति करते हैं वर्जिन मरियम की। व यअतकिदूना, चेक कर व यअतकिदूना फी सालूसिल मरियमी, ये ट्रिनिटी में मरियम अलैहिस्सलाम को पार्ट बनाते हैं। एक कॉप्टिक क्रिश्चियन कह रहा है। तो यहां से 2 चीजों का जवाब मिल गया। नंबर 1, ये एतराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर करना कि उन्होंने मूर्तियां देखी, उनको लगा कि पूजा हो रही है, लिहाजा उन्होंने कह दिया और मेड अप स्टोरी बनाई, नाउजुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं है।
कॉप्टिक क्रिश्चियंस ये कह रहे हैं कि कैथोलिक्स ना सिर्फ ये कि तमासील बनाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, बल्कि उनका अकीदा ये है कि ये ट्रिनिटी का हिस्सा हैं, सेंट मैरी जो हैं, और उनको मासूम मानते हैं। कॉप्टिक क्रिश्चियंस का जो इस वक्त पोप है त्वेदोरोस सेकंड, वो क्या खबर देता है अल अज़रा मरियम यानी वर्जिन मैरी के बारे में, मरियम अलैहिस्सलाम की या सेंट मैरी की खुसूसियात बयान कर रहे हैं, उनके फजाइल बयान कर रहे हैं। उनमें से पांचवी फजीलत ये है कि सेंट मैरी से शफात का तलब करना। अब ये सुनते जाइएगा वो क्या कहते हैं कि हम ये शफात तलब क्यों करते हैं, और यहां मुसलमानों को भी थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा। पेज नंबर 371 के जो हमारी प्रोफेटिक ऑर्थोडॉक्स कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं, ये चर्च ला तातकीदू, उसका ये अकीदा नहीं है कि बि अन्ना लिल अज़राई शफाअतन फकत, के शफात जो है वो डायरेक्ट सेंट मैरी वर्जिन मैरी जो हैं मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो डायरेक्ट शिफात करती हैं, सल्वेशन करती हैं, नहीं। बल वतवज्जहु सुआली इलल अज़रा, बल्कि हम तो अपने सवाल को पेश करते हैं सेंट मैरी पर, अंतुशफ़िआ फीना लदई इब्नहा अल हबीब। यहां तक हो गया कि कॉप्टिक का अपना बिहेवियर का है। अब एतराज ये उठने लगा कि क्या आप तो उनकी पूजा पाठ नहीं करते। हा हुआ मौक़िफ़ुल कनीसती, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का मौकफ है बिइज़ाइल अज़रा मरियम, मरियम के हवाले से, इन्नना, हम, लम नरफ़अहा, हम उनको बुलंद नहीं करते, इला मकामिल उलूहती कमा फ़अलल कैथोलिक, जैसे कैथोलिक मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा बना बैठे हैं, हम वैसे उनको खुदा नहीं बनाते। अल्लाह पे आ जाए। ये कुरान नहीं कह रहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं अभी कह रहे, बल्कि तुम्हारा कॉप्टिक क्रिश्चियन पोप त्वादरूस सेकंड कह रहा है कि ये कैथोलिक का अकीदा था। तो ये इतराज ना कुरान पे है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। बिल्कुल ठीक कहा कुरान ने कि तुम मरियम अलैहिस्सलाम की, सेंट मैरी की पूजा करना शुरू हो गए थे। वो कहते हैं वकमा अख्त अल कैथोलिक, जैसे कैथोलिक ने मिस्टेक की, फरफाउहा इला मकाम अल उलूहती वल अस्मती, कैथोलिक ने क्या किया, सेंट मैरी को खुदा बना लिया और उसको मासूम भी बना लिया। एक और हवाला पेश कर देते हैं, रुके। इतराज क्या होते हैं कि कुरान ने ट्रिनिटी का हिस्सा बनाया, जबकि मैंने आपको कहा उसूली तौर पर ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं बनाया। हाँ, कुरान ने यह कहा कि ये मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा इलाह बना बैठे हुए थे सेंट मैरी को, ये इतराज कुरान ने किया है। तो बाहर सूरत हमने दोनों चीजें साबित कर दी हैं। कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बेस पर उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये कि कैथोलिक्स ने ट्रिनिटी का पार्ट बना लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इन्होंने मदर ऑफ गॉड करार देकर उनको खुद खुदा बना लिया, उनकी मूर्तियां बनाई, उनसे पूजा शुरू की और उनको उलूहियत के मकाम पर रख दिया, बल्कि मासूम मानना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आखिरी हवाला मैं रख देता हूं। अल ततसावी मरियमुल अज़रा बिल मसीह, इसका मतलब ये है कि क्या वर्जिन मैरी जो हैं वो मसीह के बराबर हैं। तसमोइल मशरकी है, 25 नंबर पेज है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। वो कहता है वहाकज़ा ज़हरा फी वक्तिल जिदाल मा नसातिरा वली अजल रद्द अलैहिम लक़बु उम्मिल्लाह लि मरियम, मदर ऑफ गॉड कहने की वजह से जो इब्तदाई तौर पर दूसरी और तीसरी सदी में जो इनके ऊपर मुश्किल वक्त गुजरा है, इवन चौथी सदी तक 4th सेंचुरी तक इनके ऊपर जो मुश्किल वक्त गुजरा है, जिसमें अकायद के बारे में कंफ्यूजन्स चल रही थी, वहां एक अकीदा पेश किया गया कि क्या सेंट मैरी के लिए मदर ऑफ गॉड का लकब यूज किया जा सकता है वर्ड। तो उसके जवाब देने के तौर पर कहा गया, वो कहता है वहाज़ल लकबू, कहता है सेंट मैरी को मदर ऑफ गॉड कहना काना सबबन कबीरन, ये एक बड़ी वजह है, लि इंशाई इबादतिहा व इस्बातिहा, तो ये सेंट मैरी की पूजा पाठ में, वर्शिप होने में ये मदर ऑफ गॉड का लकब देना बहुत बड़ी वजह बना। अब उसने देखें यहां पर भी इस्कंदरिया का जिक्र किया कॉप्टिक क्रिश्चियन का, फाइना कैरलस अस्कफ अल-इस्कंदरिया अल्लज़ी तुवफ़िया
सना 444 وبروكلس أسكابكلس الذي توفي سنة 446 هما أول من آتياها عبادة الدینیہ. لو چیک کرو 444 مسیح میں اور 446 مسیح میں. Guess what? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے 150 سال پہلے، راؤنڈ اباؤٹ 130 سے 150 سال پہلے مصر کے اندر یہ عبادت شروع ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور ایون کانسٹینٹی نوپل کے اندر بھی، قسطنطنیہ میں بھی یہ عبادت کے حوالے سے لقب دیے جا چکے تھے. اور پاسٹر مٹھیو یہ بھی دیکھ لے، وَهَكَذَا بدأت، اس طرح شروع ہوئی عبادت مریم، سینٹ میری کی پوجا، بالتحقیق اثناء القرن الخامس، 5ویں صدی میں. لیکن 7ویں صدی اور 8ویں صدی کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ کام کرنا شروع ہو گئے تھے. لہذا اس سے یہ چیز پتا چلی کہ سینٹ میری کی پوجا پاٹ نہ صرف یہ کہ اپوسٹولک ٹریڈیشن ہے. اپوسٹولک کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کے جو اپوسٹلز تھے ان سے یہ شروع ہو گئی تھی، ان کی قبر پر آ کر پوجا پاٹ جس میں سینکڑوں لوگ مرے. اسی طریقے سے انہوں نے ان کو مدر آف گاڈ کا لقب دیا، جس کی بنیاد پر یہ پوجا پاٹ شروع ہوئی. ان کی مورتیاں بنائیں، ان کے چرچز بنے، ان کو خدا سمجھا گیا، ان کے آگے دعائیں پیش کی گئیں، ان سے شفاعت کروائی گئی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ پوری کتاب اسی کانٹیکسٹ کے اوپر ہے جو سموئیل مشرقی نے اس حوالے سے لکھی ہے، جو خود کرسچن ہے اور اس نے مختلف تنقیدات لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ اس نے 2 غلطیاں کی ان کے بقول. نمبر 1، ان کو تثلیث کا پارٹ کہا. پہلی بات ہے بالکل نہیں کہا. ان کیس کہا، وہ بھی ہم نے دکھا دیا کہ آپ لوگ کہتے رہے ہیں، کاپٹک آپ پر الزام لگاتے ہیں. نمبر 2، دوسرا الزام یہ ہے کہ ہم قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے رہے ہیں، سینٹ میری کی، وہ بھی ہم نے دکھا دیا کہ یہ لوگ پوجا کرتے رہے ہیں ان کے اپنے حوالہ جات سے اور ڈیٹیل کے ساتھ کہ 3ری، 4تھی اور ایون 5ویں صدی تک یہ پریکٹس ہوتی رہی. اور اس کے بعد 7ویں اور 8ویں صدی کے اندر یہ پریکٹس بڑی تعداد میں عام ہو گئی. This is the reality of this whole idea.